Good morning students, welcome to online classes. Today we are going to start chapter 18 conjunctions. Okay, so conjunctions, they are the words which join. ठीक है, conjunction जो है वो कौन से words होते हैं जो join करते हैं two words, two sentences, phrases, group of words, मीन किसी भी चीज को जब हम join करने के लिए एक word use करते हैं उनको हम क्या कहते हैं conjunction. Okay, so conjunction join two words, group of words or sentences. Okay, and they also help us in showing the connection between them. What is the connection between the two sentences? Okay, जैसे एक sentence है और दूसरा sentence, तो ये दो sentence के बीच में क्या connection है? That also we come to know with the help of conjunction. Okay, so examples of conjunction you can see and, but, or, nor, for, yet, because, if, so, unless, after, although, though, as if, before, since, so that, then, until, when, where, why, once, whereas. So all these are the examples of conjunctions. Okay, they help us in joining two words. For example, if I like banana and I like mango. Okay, so now I have to tell. अगर मुझे किसी को बताना है कि मुझे बनाना भी पसंद है, मुझे मैंगो भी पसंद है. Okay, then how I will say? Either I can say it in two sentences, या तो मैं उसे दो सेंटेंस में बोलूंगी, है ना. First sentence I will say I like banana. Okay, and then second sentence I will say I like mango. Okay, but so here I have to say two sentences. Okay, but if I will use conjunction, this conjunction, अगर हम conjunction use करेंगे तो क्या होगा, ये दो sentence को मैं एक sentence में भी बोल सकती हूँ, है ना. For example, what I will use, I will say I like banana and mango. Okay, मुझे बनाना पसंद है और मैंगो पसंद है. So here I have used conjunction and. Okay, and यहाँ पे मैंने जब conjunction use किया तो उससे क्या हुआ, दो सेंटेंस जो है वो एक में मैंने बोल दिया, है ना. टू सेंटेंस दे आर जॉइंड टुगेदर एंड आई मेड अ शॉर्ट सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस बन गया. ओके, सो हम कंजंक्शन का और यूज क्या होता है, व्हाई कंजंक्शन इज नीडेड, बिकॉज इट हेल्प अस इन मेकिंग द सेंटेंस शॉर्ट एंड प्रिसाइज. ओके, कंजंक्शन यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को शॉर्ट और प्रिसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं एंड वेरी इजी ऑल्सो. ओके, तो अगर हमें एक चीज बोलने के लिए हमें इतना सारा बहुत सारी लाइन्स यूज करनी होगी, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो जब हम सेम वर्ड्स यूज कर रहे हैं एक ही टाइप के, तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन यूज करके हम उस सेंटेंस को शॉर्ट और इजी कर सकते हैं. अंडरस्टूड. सो कंजंक्शन इट हेल्प्स अस इन precising the sentence. This is the main use of conjunction. It helps in joining two sentences to make it short and precise. So you all are clear with the examples. These are the examples. इनके अलावा भी और होते हैं. These are some of few of the examples which I have written here of conjunction. Okay. Now I will tell you that when we will use which conjunction. Okay. So we should be clear कि हमें and कब use करना है, हमें or कब यूज करना है, but कब यूज करना है. What is the use of conjunction but, when to use this in the sentence. Okay, so now I am going to tell you that. Hope all are clear with conjunctions. What are conjunctions? The words that joins two sentences or words or phrases, they are known as conjunctions. Okay, the joining words, they are known as conjunction. Okay, now let us see that when, what is the use of conjunction and, when to use. Okay, कब हमें and conjunction लगाना है. So and it means to join similar words or sentences. जब हमारे जो sentence है या फिर जो words हैं वो एक जैसे हैं, similar हैं, तो उनको join करने के लिए हम कौन सा conjunction use करेंगे, and. Okay, for example, Mohan is gentle and intelligent. So here you can see I have used conjunction and. यहाँ पे मैंने कौन सा conjunction use किया है, and. Okay,
वाई? बिकॉज हियर आई एम टेलिंग द क्वालिटी ऑफ मोहन। इस सेंटेंस में मोहन की क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है। ओके, एंड दोनों क्वालिटीज जो है वो पॉजिटिव है, मतलब कि गुड क्वालिटीज है। मोहन जो है वो जेंटल है और इंटेलिजेंट है। ओके, सो एंड हिंदी में हम क्या बोलते हैं? और। ठीक है, तो जब हमें और यूज करना होता है इन हिंदी, और मतलब ये भी वो भी सब एक जैसा जो है सब चाहिए, देन एट दैट टाइम वी यूज एंड। ओके, सो मोहन इज जेंटल एंड इंटेलिजेंट, वी विल यूज कंजंक्शन एंड। Understood? To join similar words or sentences. For example, I have to say, I am going to market to buy pencil, rubber, cutter, books and chocolate. Okay? So in this sentence, I have said so many items जो मुझे खरीदनी है, and in the last I have used and chocolate. मतलब ये सारे आइटम्स के साथ मुझे ये आइटम और ये आइटम भी खरीदना है। ठीक है, तो ये भी खरीदने की चीज है जो हम खरीदने जा रहे हैं। So these are the similar words and similar sentence. Okay, so that at that time I will use and. अब अगर for example if I have said this in two sentences, अगर मैंने यहाँ दो सेंटेंस बनाए होते, मोहन इज जेंटल एंड सेकेंड सेंटेंस मोहन इज इंटेलिजेंट। सो बोथ द सेंटेंस दे आर ऑफ सेम टाइप। दोनों सेंटेंस क्या कर रही है? मोहन की क्वालिटी बता रही है। तो ये दो सेंटेंस को हम शॉर्ट कर देंगे कंजंक्शन एंड लगा के, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारे सिमिलर है। सो मोहन इज जेंटल एंड इंटेलिजेंट। अंडरस्टूड? एंड का मतलब क्या होगा हिंदी में? और। ओके, नाउ नेक्स्ट कंजंक्शन इज बट। बट को हम क्या बोलते हैं? बट मीन लेकिन, है ना? हम जब सेंटेंस बोलते हैं तो हम यूज करते हैं ना लेकिन। मैं कपड़े ले सकता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? हमने कौन सा वर्ड यूज किया? लेकिन, है ना? सो दिस इन इंग्लिश वी से बट। सो हम बट कब यूज करते हैं? टू मेक कॉन्ट्रास्ट और टू मेक अपोजिट। जब हमें कॉन्ट्रास्ट मतलब जब किसी चीज में हमें लेकिन लगाना है तो हम क्या यूज करते हैं? बट। या फिर जब हम अपोजिट बोल रहे थे, फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉल, आई हैव टू सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू सेंटेंस। ओके, he is tall, second sentence he is short. Okay, now I have to join this sentence, these two sentences I have to join. So now which conjunction I will use here? First sentence में क्या है? वो लंबा है, और दूसरे sentence में क्या है? वो छोटा है। तो यहाँ पे हमारे जो sentence है वो दोनों ही अलग अलग, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। So to make opposite or to make contrast, which conjunction I will use? यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं? But। वो छोटा है लेकिन वो बड़ा है ना? या he is tall but he is small. So here I will use the conjunction but। यहाँ पे हम कौन सा conjunction यूज करेंगे? But, क्योंकि यहाँ पे हम contrast बना रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक टॉल है और दूसरा शॉर्ट है, तो अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? बट। सी वन मोर एग्जाम्पल, आई वेंट इनसाइड बट आई डिड नॉट फाइंड इट। मैं अंदर गया लेकिन मुझे वो नहीं मिला। ठीक है, मतलब कि हमने कोशिश की लेकिन नहीं मिला। सो हियर ऑल्सो वी आर मेकिंग कॉन्ट्रास्ट, सो वी विल राइट बट। अंडरस्टूड? तो बट को हम हिंदी में क्या कब यूज करेंगे? जब हमें लेकिन यूज करना होता है, एट दैट टाइम जब हमें कॉन्ट्रास्ट बनाना है, अपोजिट यूज करना है, फॉर दैट वी विल यूज कंजंक्शन बट। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन इज और। नाउ और, ये तो सबको पता है। और हम लोग क्यों यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू मेक द चॉइसेस, जब हमें चॉइस देनी होती है या जब हम ऑप्शन रेफर करते हैं, चॉइस रेफर करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन और। ठीक है, और का मतलब क्या होगा? या। हिंदी में इसका मतलब क्या होगा? या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टॉफीज और बिस्किट्स। तुमको टॉफी चाहिए या बिस्किट्स चाहिए। ठीक है, सो आई एम ऑफरिंग हियर। यहाँ पे दो चॉइस, दोनों में से कोई एक चीज चॉइस करनी है। तो जब दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, जब हमें चूज करना है, चॉइस बनानी है अपनी, तब हम क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज। ओके, तो बिकॉज इट मीन क्योंकि। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। सो बिकॉज वी यूज व्हेन वी हैव टू गिव द रीजन, जब हम रीजन बता रहे हैं।
ठीक है, कि एक जो काम हुआ है वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। जब हमें किसी चीज का रीजन देना है तो हम क्या लिखते हैं, तो हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि, बिकॉज। ओके, एंड व्हेन वी आंसर द क्वेश्चन, yes or no? So you can see whenever we are writing question and answer, when the question is asked, we write it answer, and in that answer we always use because. हम हमेशा because लिखते हैं। So because का मतलब क्या होता है, क्योंकि। So when we want to give reason and give the answer, we use conjunction because. Okay, for example you can see here two sentence, he came first, वो first आया। Second sentence, he studied hard, उसने मेहनत करके पढ़ा। Okay, now I have to join these two sentences. So what I will write, he came first because he studied hard, वो first आया क्योंकि वो मेहनत से पढ़ा। ठीक है ना, वो मेहनत से पढ़ा, वो फर्स्ट आया क्योंकि वो मेहनत से पढ़ा। ओके, सो हियर वी विल यूज द कंजंक्शन बिकॉज। नाउ सेकंड इज सो। नाउ यू कैन सी सो, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, इसलिए। सो हम कब यूज करते हैं, इसलिए के लिए। ठीक है, टू टेल द रिजल्ट। सो जो है वो कंजंक्शन कब यूज होता है, जब हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका रिजल्ट जो है वो सेकंड सेंटेंस में पता चलता है। Then we use conjunction so. Okay, so see the sentence, he studied hard so he came first. तो यहाँ पे क्या है, पहला जो सेंटेंस है he studied hard, इसका रिजल्ट पता चल रहा है हमें दूसरे सेंटेंस में, he came first, उसने मेहनत करके पढ़ा इसलिए वो फर्स्ट आया। ठीक है ना, सो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस का रिजल्ट जो है वो आ रहा है हमारे दूसरे सेंटेंस में, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, सो। अंडरस्टूड, सो वी यूज कंजंक्शन सो टू शो द रिजल्ट, टू टेल द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, रिजल्ट इज शोन इन सेकंड सेंटेंस, एंड दैट टाइम वी विल यूज कंजंक्शन सो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है सो और बिकॉज में। सी सेम सेंटेंस, वो फर्स्ट आया क्योंकि उसने मेहनत की। ठीक है, उसने मेहनत की इसलिए वो फर्स्ट आया। अंडरस्टूड, सो ही केम फर्स्ट बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। एंड व्हेन वी आर यूजिंग सो, तो आप देखो मीनिंग चेंज हो गया, ही स्टडीड हार्ड so he came first. Understood? So this difference you should be clear with it. Okay, now next conjunction is when. When का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब। Okay, so this conjunction we use to indicate time of action. जो भी एक्शन हो रहा है वो किस टाइम पे हुआ है उसका टाइम बताने के लिए हम यूज करते हैं कंजंक्शन when. Okay, for example, he will eat when his father will come. वो खाएगा जब उसके पापा आएंगे। सो हियर जो एक्शन हो रहा है, मतलब वो जो खाना खाएगा वो कब होगा, वो एक्शन जो है वो कब होगा, उसका टाइम पता चल रहा है हमें, कब होगा, जब उसके पापा आएंगे। ठीक है, एट दैट टाइम ही विल ईट। सो हियर वी विल यूज द कंजंक्शन when. Understood? So when conjunction, it is used to indicate